and welcome, my dear students. Hello and welcome, my dear students. Today we are meeting once again and we will discuss about lesson number 16. Okay, so it is lesson number 16, economic liberalization, globalization and privatization. Everybody knows that our country achieved its independence in 1947. Immediately after achieving the independence, the newly appointed government had brought certain economic policies to promote, to bring development among the people, because everybody knows India was ruled by the Britishers. The Britishers were ruling for themselves, for their self-interest, so they have never given for the progress and achievement of India. So immediately after the newly elected government came to power in 1950, since then the government's effort, it is by the effort of the government, many plans were taken. The first 5-year plan started in 1951. The main aim and objective of the 5-year plan was to bring achievement among the people, poor people. So they have invested money in various fields, in agriculture, industry, irrigation, forest, employment sector, everywhere. Still, there was no progress, there was no development. Till 1990, the government was becoming, there was to some extent, there was some progress during the time of Nehru and Indira Gandhi. They have brought green revolutions, but industrially India was not so developed. We were developed and we were enough for living our livelihood, but there was no industrial development. So in 1991, our late Prime Minister, former Prime Minister Manmohan Singh, he brought 3 concepts from foreign market, from European markets. These 3 concepts were economic liberalization, privatization and globalization. Then we will discuss what are economic liberalization, privatization and globalization. Economic liberalization refers, economic liberalization क्या है, अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. भारत को अंग्रेज शासन करता था. अंग्रेज कभी भी भारत का भला ही नहीं चाहता था. भारत में जब स्वाधीनता का संग्राम, बाद में भारत आजादी हुआ, आजादी होने के बाद जवाहरलाल नेहरू became the first prime minister and he wanted to bring some development. लेकिन जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, many prime ministers went till 1991. किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट, सक्सेसफुल डेवलपमेंट, satisfactory development was not there in India. इसलिए our late and former prime minister Manmohan Singh, Narasimha Rao was the prime minister and Manmohan Singh was the finance minister at the time. So Manmohan Singh brought these 3 concepts from global market or European market, most probably: economic liberalization, globalization and privatization. First of all, we will discuss about economic liberalization. There was a lot of restrictions and controls in industrialization, trade, commerce, import, export and in business sectors. Barabar? All these restrictions were reduced. The reduction of restriction and control imposed upon the industrial sector. बराबर? तो हम लोगों को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस द restriction and control imposed on private sector and encourage economic development. This is known as economic liberalization. Everything was done by the government. Now, according to economic liberalization, private sector was given importance. Private entrepreneurs were given importance. अभी private मालिकों को export करना, import करना, privately industry establish करना, all these things went on. Okay, so इसका जो those are as follows. What changes were brought? We are going to read one by one. There was reservation of only 18 industries. For industries other than them, compulsion to government permission was eliminated. सिर्फ 18 इंडस्ट्री को गवर्नमेंट के पास रखा गया, बाकी all those responsibility of functioning the industry was given to the private persons or private entrepreneurs. सेकंड पॉइंट बोल रहा है एरियाज अदर देन. क्या क्या रहा इसमें? एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, रेलवे, पोस्टल, टेलीग्राम, बैंकिंग, ये सब क्या, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में रख के बाकी अदर सब डिपार्टमेंट वाज गिवन टू ब्रिंग डेवलपमेंट इन प्राइवेट सेक्टर. ट्रेडिशन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्री वाज कैंसल्ड. कंपल्सरी
रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था जो इंडस्ट्री करता था, इट वॉज रिड्यूस्ड, इट वॉज abolished. Provision to take government permission for setting up industry which do not cause pollution and are not hazardous for environment was also cancelled. ये भी कैंसिल किया गया जो पोल्यूशन क्रिएट करता है. देयर आर सर्टन इंडस्ट्रीज विच आर क्रिएटिंग पोल्यूशन. ऐसे कितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है कि जो पोल्यूशन क्रिएट करता है, राइट. नेक्स्ट वी विल सी एडवांटेज ऑफ liberalization. As a result of liberalization, private sector has got an opportunity to make constrained development which led to increase in production. Private sector को जब आजादी मिल गया तो प्रोडक्शन बढ़ने लगा. Secondly, because of accepting policy of liberalization, global trade started getting importance, has been increase in global trade. Indians or Indian traders well communicated with other countries in trade and commerce, and they have produced and manufactured. They have increased their production units in India and they have dispatched many goods, commodities and many articles to foreign markets. Third point, because of the increase in foreign trade, there has been increase in reserve of foreign exchange. Whenever जब हम लोग विदेश राष्ट्रों के साथ, विदेशों के साथ कारोबार करना चालू कर दिया, तब हमारे देश में फॉरेन करेंसी बहुत आया, जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज. जो कंट्री का फॉरेन करेंसी ज्यादा होता है वो कंट्री क्विकली एडवांस करता है, राइट. ये भी एक सुविधा हमको मिला, एडवांटेज. इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन. इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि देश को आगे लेने के लिए, देश का प्रोग्रेस कराने के लिए बहुत सारे सिस्टम होता जो जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस इंक्लूड्स एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बराबर, इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, लैंड रिफॉर्मेशन, ये सबको बढ़ावा देना, जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन. नेक्स्ट कम डिसएडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन. इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन रिस्ट्रिक्शन, मोनोपोली कुड नॉट बी चेक्ड. ये अभी हम डिसएडवांटेज को बात कर रहे हैं. तो डिसएडवांटेज में क्या हुआ? मोनोपोली. मोनोपोली का मतलब मनमानी करना, डोमिनेट करना. अगर एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी है तो अमीर आदमी गरीब आदमी को, या रिच क्लास ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स डोमिनेटेड ओवर पुअर क्लास पीपल. ओके. Second disadvantage, as focus has only been given on industrial sector, India remained in development of agriculture field. नया नया जब इंडस्ट्री आया, everybody ran after getting more profit behind industrialization. So everybody invested their money behind industries, trade, commerce, export, import, but nobody has given importance to agricultural development. सरकार जो रेशियो में इंडस्ट्री को इंपोर्टेंस दिया, अगर वो रेशियो में सरकार एग्रीकल्चर को देता तो देयर वुड नॉट हैव बीन एनी प्रॉब्लम, बराबर. नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इंपोर्ट, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, फॉरेन डेब्ट हैज इंक्रीज्ड. अभी ये सिस्टम में क्या हुआ, इंडस्ट्री के लिए हम लोग को रॉ मटेरियल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी ये सब लाना पड़ा, तो हमारा देश बहुत सारे चीज को इंपोर्ट करता है. दैट मीन्स इंपोर्ट इंक्रीज एंड एक्सपोर्ट डिक्रीज्ड. कोई भी कंट्री का जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है वो फायदा पाता है, लेकिन उस वक्त क्या हुआ, हमारा इंपोर्ट बढ़ने लगा, हम दूसरे कंट्री से बहुत सारे सामान लाना है. दैट मीन्स आवर मनी वेंट टू फॉरेन मार्केट्स. नेक्स्ट कम प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन मीनिंग क्या है? प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक यूनिट्स टू private and individual enterprise is known as privatization. The transfer of the ownership from public यानी गवर्नमेंट, मालिकाना जो होता है गवर्नमेंट का ओनरशिप प्राइवेट पर्सन को सरकार दिया. क्यों दिया? why government handed over the government industries or industrial unit to private persons? क्योंकि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स who were working in government मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन यूनिट, इन लोगों ने क्या किया? चीटिंग किया सरकार को, प्रॉफिट होने के जगह लॉस दिखाया, बराबर. सो कलेक्टिवली व्हेन दे हैव चीटेड, तो सरकार ने तय किया कि इट वुड बी बेटर टू गिव इट टू प्राइवेट पर्संस. ऑल द गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज वर अनलिस्टेड एंड द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, मोस्ट प्रोबेबली इंडस्ट्रीज ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप हैंडेड ओवर टू द private persons or private contractors. So auctions were made and private contractors are invited and the ownership transferred from public to private or individual enterprise.
नेक्स्ट, ये जो इसको बोलते प्राइवेटाइजेशन मेथड्स, फर्स्टली एरिया विच वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर और ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। जितने सारे गवर्नमेंट का इंडस्ट्री था वो सब प्राइवेट को सब सिलेक्शन कर दिया गया और प्राइवेट पर्सन को हैंड ओवर किया। सेकेंडली, स्टेट कीप ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन्ड कंपनी अंडर इट्स कंट्रोल एंड गिव चार्ज ऑफ मैनेजमेंट टू प्राइवेट कंपनी और स्टेट कीप मैनेजमेंट। मतलब यहां पर दोनों मिल गए। अगर मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनी करेगा तो ओनरशिप विल बी बिलोंग टू स्टेट गवर्नमेंट। इफ स्टेट गवर्नमेंट विल टेक द मैनेजमेंट, द प्राइवेट कंपनी विल गिव ओनरशिप। इफ स्टेट हैज ओनरशिप, द प्राइवेट कंपनी विल टेक द मैनेजमेंट। इन दिस वे एक पावर गवर्नमेंट के पास रहेगा तो दूसरा पावर प्राइवेट पार्टी के पास रहेगा, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के पास रहेगा। इन दिस वे अभी हम देखेंगे, यस दिस वाज द मेथड। नाउ वी विल डिस्कस एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद फ्रीडम वाज गिवन टू प्राइवेट ओनर्स एंड इन दिस वे प्रोडक्शन इंक्रीज, प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज इन कैपिटल इंटेंसिव। ऐसे प्रोडक्शन बढ़ने लगा, ऐसा चीज को इन लोगों ने एम किया, हाउ देयर इनकम विल इंक्रीज। एवरीबॉडी इन्वेस्टेड देयर मनी, फ्रॉम वेयर दे विल गेट मच मोर प्रॉफिट। सो प्रोडक्शन यूनिट्स वर इंक्रीज। वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज इंप्रूव्ड। सरकार जो अकेला करता था, अभी सरकार का दो हाथ हो गया, एक हाथ सरकार के पास, दूसरा हाथ प्राइवेट कंपनी के पास। जब मिलजुल कर किए, when they coexist to one another, now the working capacity increased because of transferring the ownership or management to the private companies. Next come disadvantage of privatization. Cottage economic power has centralized as a result of privatization. ये सिस्टम तो हो गया, लेकिन प्राइवेट ओनर्स what they did, they have exploited, exploitation began. आपको पता है हमारा देश में लगभग 60% प्रॉपर्टी 20% लोगों के हाथ में मौजूद है। तो जिसके पास ज्यादा पैसा है, दे आर इन्वेस्टिंग मनी, दे आर टेकिंग द चार्जेस ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, दे आर डूइंग बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, एवरीथिंग। सो इन दिस वे पुअर पीपल वर मोस्टली exploited by this system. Cottage industry have not developed properly due to privatization. Only large industry have been benefited. लार्ज स्केल इंडस्ट्री में मजदूर लोगों ज्यादा काम किया। जो घर में हैंडीक्राफ्ट वर्क, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री was going on, all these things were reduced their income. They were now became unemployed. They have to depend upon large scale industries or heavy industries. Prices have not remained under control due to privatization. This led to the problem price rise. इसमें क्या हुआ, ज्यादातर ओनर्स मनी एक्सप्लॉइट करने लगे हुए, increasing and decreasing, inflation and deflation of money in the market was going on because of this system. This was the disadvantage. Next come globalization. Globalization का definition क्या है? Connecting the economy of India with the economy of other countries of the world at international level. भारत का इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट में लगभग हर कोई कंट्री के साथ कनेक्टेड करना, द सिस्टम इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। उसको हम कैसे लिखेंगे, ये 2 मार्क में आता है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ इंडिया विद द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और अदर कंट्रीज इकोनॉमी विद ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। बाय दिस वे वी कैन एक्सचेंज सो मेनी थिंग्स विथ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट दोज आर, देखो, following improvement have taken place due to globalization. Obstacle of trade between two nations have been removed. पहले व्यापार करना, बिजनेस करना, ट्रेड एंड कॉमर्स करना, टेक्नोलॉजी लेन देन करना, ये सब रेस्ट्रिक्टेड था। लेकिन अभी ग्लोबलाइजेशन के बाद हम एजुकेशन ला सकते, टेक्नोलॉजी ला सकते, लेबर एक्सचेंज कर सकते, बराबर। एक्सपर्ट्स को भी हम अपने देश में, इंजीनियर साइंटिस्ट को भी हम ला सकते। ये एक सुविधा मिल गया टू प्रोग्रेस ईच एंड एवरी नेशन। Next, such a condition has been created so that capital exchange can easily take place between two nations. जब हम व्यापार करेंगे तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कैपिटल एक्सचेंज होगा। हम कुछ देकर लाएंगे, हमसे कोई खरीदेगा, वो भी अपना करेंसी हमको देकर वो खरीद करके लेगा। Obstacle in the way of exchange of technology have been removed. हमारा देश में कुछ भी नहीं था। जब अंग्रेज शासन करता था, कंप्लीटली इंडस्ट्रियल सेक्टर को उखाड़ के सब जहाज में लोड करके ले गया था। अभी हमको रशिया और जर्मनी ये सब कंट्री थोड़ा थोड़ा मदद किए, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद कोई भी टेक्नोलॉजी हम किसी भी कंट्री से हम ला सकते, ऐसा रूल्स रेगुलेशन बन गया एज पर ग्लोबलाइजेशन।
फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर में भी देयर अमंग डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता होगा कि अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज दे वर टेकिंग लेबरर्स फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड एशियन कॉन्टिनेंट टू द ब्लैक पीपल। वो लोग को फार्म एनिमल जैसे काऊ शेड में जैसे काऊ को रखा जाता, इनको दिन भर के खटाया जाता और रात को एक रूम में ताला लगा कर रखा जाता। अगर वो मर गया उसमें कोई खबर नहीं है, बीमार होकर मर गया तो मर गया, उसका ट्रीटमेंट का व्यवस्था नहीं था। इस तरह प्रॉब्लम की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लेबर एक्सचेंज का प्रॉब्लम हुआ। लेकिन अभी ग्लोबलाइजेशन के बाद नाउ लेबर एक्सचेंज बिकम फ्री एमंग द नेशंस, बराबर। तो कोई भी लेबर कोई कंट्री लेता है, उसका एग्रीमेंट होता है, वो घर में फैमिली के साथ फोन कर सकता, अगर उसका बीमार हो गया तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, अगर उसका डेथ हो गया तो उसका फैमिली को की भी कुछ रेम्युनरेशन मिलेगा, राइट। सो दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, सो फॉर व्हिच इट बिकेम हेल्पफुल फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ लेबरर्स। हमारा देश से कोई भी लेबर कोई कंट्री में जाता है, वो देश उसका पूरा जिम्मेदारी लेता है। इन दिस वे एक्सचेंज ऑफ लेबर बिकेम इजी, जो पहले नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1991 के बाद आफ्टर ग्लोबलाइजेशन दिस सिस्टम बिकेम वेरी यूजफुल फॉर द लेबर क्लास पीपल, बराबर। नेक्स्ट कम effect of globalization. Mixed effect of globalization have been there on Indian economy. There is advantage as well as disadvantage. हम पहले एडवांटेज पढ़ेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनकरेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी बहुत सारे फॉरेनर दे केम एंड इन्वेस्टेड देयर मनी बिकॉज मदर इंडिया इज एंडाउड विथ a great deal of natural resource, mineral resource, water resource and having manpower. A country of largest manpower. 66% youth of the world is living in India. Barabar? So many countries, they are having their eyes on India to invest their money. Okay? That will provide employment facility to the unemployed youth in India. It is a blessing in disguise to our country. Goods produced in the developed country can easily be obtained due to globalization. हमको कोई कोई चीज का कमी था, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ so many countries they were producing these goods and commodities in their country and it will be easily available in Indian market due to globalization. Developing countries like India can withstand competition at international level due to globalization. अभी हमारा देश भी कम नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वर्तमान प्रेजेंट कंडीशन में मोदी सरकार जब आया, a good deal and a great deal of development is going on in each and every sector. So हमारा अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बाहर देश को जाता है, बराबर। एंड सो मेनी इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक टाटा, रिलायंस, बिरला, ये सब लोग जो है they are also having greater investment in other countries of the world and they are manufacturing a great deal of goods and commodity and they are exporting to other countries. टाटा का जो गाड़ी है ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है। टाटा सेट इंडस्ट्रियलिस्ट, इट बिलोंग टू इंडिया। नेक्स्ट कम disadvantage of globalization. Expected success not been attained in finding solution to the problem of poverty, unemployment and globalization. ये तो हुआ, एडवांटेज तो हुआ, नो डाउट, लेकिन हम जो एक्सपेक्टेड करते थे, our expectation did not come successful. हम जो रेशियो में प्रोग्रेस चाहते थे, accordingly it did not happen. Developing countries have not acquired proper benefit of increase in export. बराबर। डेवलपिंग कंट्री क्या है? गरीब राष्ट्र जो होते हैं। हम लोग अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ कंट्री, डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड। इंडिया इज इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग कंट्री, बराबर। ऑल यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान, अमेरिका, दे आर डेवलप्ड। अफ्रीकन कंट्रीज आर अंडर डेवलप्ड, वेयर सम इन मिडिल वे सम कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बराबर, ये सब कंट्री जो होते हैं ये सब डेवलपिंग कंट्री। बट डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट गेट मच मोर profit out of it due to globalization, बराबर। large scale industry have acquired more benefit while small scale industries obtain less benefit. large scale industry or heavy industries जहां पर huge amount of investment of money, labor, capital, बराबर, resource, they got much more profit, whereas small scale industry, cottage industry were ignored and neglected. They did not get, even those units were broke down and they became unemployed. Okay, so this was about economic liberalization, globalization and privatization. We have already discussed the advantage and disadvantage of these 3. Now we will discuss about WTO. इसका मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
1st January 1995, the WTO first time established in the world. The member nations, all the member nations of United Nations organization, they took part in WTO. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि पूरा विश्व में each and every country will come in trade and commercial relationship or business connection with almost all the countries of the world. इसके लिए इसको बनाया गया, बराबर. Its headquarter is in Geneva, okay? Geneva in Switzerland, the capital of Switzerland. So the establishment of WTO was in 1st January 1995 AD, and all the UN representative of UN, they became its member. Barabar. Now it became very easy for exchange of goods and commodities, trade and commerce. अभी हम वाणिज्य और व्यवसाय करने के लिए एक इजी मेथड और उपाय हमको मिल गया, जिसके कारण इट बिकम वेरी मच इजी. ओके, सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO? बराबर, टू रिमूव ऑब्स्टेकल इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेडिंग. पूरा विश्व स्तर में अगर कोई वाणिज्य और व्यवसाय में कोई कमी है तो उसको सॉल्व करना. रिमूव प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड. हर कोई गवर्नमेंट अपना देश में प्राइवेट पर्सन्स आर नॉट अलाउड टू डू सर्टन काइंड ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज, exchange of business, exchange of goods and commodity with other countries. Particular articles, goods and commodities cannot be exchanged by private enterprises, बराबर, और entrepreneurs. This was the restriction, ये हटाया गया. Third point, coordinate with global trade policy and economic policy. ये जो पॉलिसी बनाएगा WTO, everybody must have to obey it and follow it. बराबर, कोई पावरफुल कंट्री दूसरे वीक कंट्री के ऊपर दादागिरी नहीं कर सकता. To solve the trade-related dispute arising in the world, there are many countries, European countries or powerful countries, they were dominating to African and Asian countries in trade and commerce or exchange of goods and commodities. अभी ये सिस्टम को भी रिमूव कर दिया गया, क्योंकि हम WTO के जरिए गुड्स भेजेंगे और गुड्स लाएंगे, बराबर. WTO will take responsibility of exchanging all goods and commodity among the nations of the world. इसलिए वहां पर किसी भी प्रकार का भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ. Then come function. To set up required structure of implementation of agreement related to multinational trade and agreement related to it. Multinational, पहले एक कंट्री एक दो कंट्री के साथ व्यापार करता था. अभी इसके WTO एस्टेब्लिश होने के बाद अभी one country will do business and exchange of goods and commodity with multinational companies. At a time एक या दो आर्टिकल के ऊपर हम बिजनेस करते थे, अभी हम बहुत सारे आर्टिकल के ऊपर बहुत सारे कंट्री के साथ व्यवसाय और व्यापार कर सकते हैं. WTO encourage unbiased international trade. Unbiased क्या है? अभी हम हल्दी पाउडर भेजा इंग्लैंड को, वहां पहुंचने के बाद वो बोलेगा ये अच्छा नहीं है, ये माल डुप्लीकेट है, मैं नहीं रखूंगा. अभी ऐसा नहीं हो सकता, बराबर. अभी उनका लेबोरेटरी टेस्ट करने वाले आएंगे, गुड्स को टेस्ट करने वाले आएंगे, टेस्ट करेंगे, एग्रीमेंट होगा, वहां पर पहुंचेगा, पैसा वो WTO में डिपॉजिट करेगा एंड WTO विल सेंड टू इंडिया, बराबर. इस तरह का सिस्टम अभी हो गया. अभी कोई किसी को चीटिंग और ट्रैप नहीं कर सकता, जिसको अनबाइस्ड ट्रेड बोलते हैं. डिफरेंट नेशन फॉलो देयर ओन नेशनल पॉलिसी, इट ऑब्जर्व देम एंड सजेस्ट रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट. कोई कंट्री अपना अपना सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कुछ अलग होता, जैसे चाइना, जापान, बराबर, ऑस्ट्रेलिया. सो दे आर आल्सो बिकम एडजस्टेड विथ दिस. ऐसे भी कंट्री होते हैं जो कंट्री के ऊपर मेजर कंट्रीज डिपेंड करते हैं. अभी हम बात करेंगे चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दे आर हैविंग ए गुड डील ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. जैसे कि अरबियन कंट्रीज पेट्रोल डीजल बेचते हैं, बराबर. अगर वो पेट्रोल डीजल देना बंद कर देंगे तो पूरा दुनिया मुश्किल में पड़ जाएगा. अगर चाइना, इंडिया, ये सब लोग राइस भेजना, फ्रूट्स भेजना, मेडिसिन भेजना अगर बंद कर देंगे तो भी पूरा दुनिया में हाहाकार हो जाएगा, बराबर. इट विल बी ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन विल बी क्रिएटेड अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. इसलिए उसके लिए भी पॉलिसी बनाया गया कि सब लोगों को, अलग अलग कंट्री को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एडजस्ट रहना पड़ेगा. एवरीबॉडी, एवरी मेंबर नेशन विल गेट एडजस्ट विद द पॉलिसी एंड प्रिंसिपल ऑफ WTO. इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी. व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी? देखो, पहले हमारा 0.5% हमारा व्यापार होता था. व्हेन इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ WTO, इट वाज इंक्रीज्ड टू 1%. एंड मोस्ट प्रोबेबली वी आर सेंडिंग कॉटन क्लॉथेस, रेडीमेड गारमेंट्स.
These garments are highly demanded in European and American markets. Okay, and WTO export of ready-made cloth for our country has increased. As a member of WTO, India has been able to export of its agro product. बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हमारा फॉरेन कंट्रीज में जाता है, जैसे स्पाइस, टी, कॉफी, कॉटन, बराबर, सिल्क एंड राइस, व्हीट तो नहीं, व्हीट भी जाता है, राइस ज्यादातर जाता है, और वेजिटेबल्स. ओके, नेक्स्ट कम, ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, प्रेशर ऑन इंपोर्ट हैज रिड्यूस्ड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज बीन इंक्रीज्ड इन फॉरेन एक्सचेंज. इसके कारण से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारा बढ़ने लगा. Thus, as a member of WTO organization, India will not only get above mentioned but benefit, also has to comply with some condition. It is especially dependent on how first. वर्तमान ये होने के बाद हमारा देश और देश के सारे नागरिकों को ये कोशिश करना चाहिए, how India will stand in the front line of the countries at international level in trade and commerce and business transactions. Okay, so अभी ये सब तो हम लोग पढ़े इसके बारे में. अभी हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट. व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बराबर. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. यहां पर बोलता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज द डेवलपमेंट विच मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. हम जिएंगे, नाउ वी आर लिविंग, एट द सेम टाइम वी मस्ट ऑल्सो लुक आफ्टर फॉर द कमिंग जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन. इसको शॉर्टली बोलते हैं जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव. सस्टेनेबल डेवलपमेंट को शॉर्टली बोलेंगे जियो और जीने दो, और लिव एंड लेट लिव. आप भी जियो, दूसरों को भी जीने दो. हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होगा. ये धरती, ये लिथोस्फीयर, ये एनवायरनमेंट, ये सराउंडिंग, ऐसे हमसे पहले हजारों जनरेशन जा चुके हैं और भी आएंगे. हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये नेचर को, ये एनवायरनमेंट को सुरक्षा करके रखे. हम भी उसका जिम्मेदार लेंगे, क्योंकि हमारे भी और आने वाले पीढ़ी आएंगे. देयर आर मेनी फ्यूचर जनरेशन, दे विल कम, दे हैव टू लिव देयर लाइफ, सो वी मस्ट हैव टू थिंक फॉर देम. सो वी शुड नॉट यूज एंड मोनोपोलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज. हम लोगों को मनमानी करना नहीं, हम लोगों को अपना रिसोर्स जो भगवान ने, कुदरत ने दिया, उसको प्रॉपरली यूज करना. हम अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है. इसीलिए शॉर्टली मैंने इसको बोला जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव. ओके, दिस इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए कहा जाता है, ज्यादातर एनवायरनमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है. एक्सेसिव माइनिंग्स एंड एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इन एग्रीकल्चरल क्रॉप and large scale heavy industries, those who are using coal mine, diesel, thermal electricity, they are creating pollution. So we should have to find out the alternative for it that cannot harm to the environment. क्योंकि the type of life we expect, it depends upon the type of environment. अगर environment बिगड़ गया तो हम भी बिगड़ जाएंगे, हमारा लाइफस्टाइल भी बिगड़ जाएगा. So we have to think it. Okay. There is tremendous decrease in natural resource due to economic development, and their quality is also deteriorating. In this condition, there is a need to change the idea of development. Idea of sustainable development is studied because of present development and effect of it on environment. हम नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करते इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. भले इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, लेकिन सोच समझ के करो. ये हमको वही बता रहा है. ज्यादातर मैंने आपको बोला एनवायरनमेंट के ऊपर उसका बुरा असर पड़ता है. ओके, सो वी हैव टू बी कॉशियस एंड कॉन्शियस अबाउट इट. राइट, नेक्स्ट कम, फॉलोइंग स्ट्रेटेजी शुड बी अडॉप्टेड फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. अभी हम लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाई किया, हम लोग को एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, बर्बाद होने से बचाना, डैमेज होने से बचाना, उसका यूजलेस यूज नहीं करना. बराबर, वी विल यूज इट जुडिशियसली. बराबर, इसको कभी भी हम इग्नोर नहीं करना. ओके, कि पहला, द रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक कल्टिवेबल फार्म, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्स शुड बी यूज्ड सच ए वे दैट देयर क्वालिटी इज मेंटेन्ड. कंटिन्यूअसली हमको जमीन खेती देता है. सॉइल को प्रोटेक्शन करना, जमीन को प्रोटेक्शन करना, प्लांटेशन बढ़ाना, एनवायरनमेंट को शुद्ध बनाने के लिए. बराबर, और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उसका भी सुरक्षा करना.
रिन्यूएबल रिसोर्स का एक्सेस यूज करना, उसका अल्टरनेट खोजना। सेकंड, इंडस्ट्रियल लोकेशन शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लेसर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ए सिंसियर अटेम्प्ट शुड बी मेड टू अचीव इको फ्रेंडली डेवलपमेंट। अभी देखो आयरन और कोल माइंस मिलता है उड़ीसा और झारखंड में। अभी हम उड़ीसा और झारखंड में आप जाओगे, ज्यादातर वहां पर आयरन स्टील इंडस्ट्री मिलता है और सीमेंट इंडस्ट्री मिलता है। अगर हम बोलेंगे नहीं हम गुजरात में आयरन स्टील इंडस्ट्री करेंगे, तो उड़ीसा झारखंड से रॉ मटेरियल आयरन ओर यहां पर लाने के लिए ट्रेन और ट्रक का यूज किया जाएगा, तो कितना ट्रांसपोर्टिंग चार्ज पड़ेगा। इसलिए सरकार और साइंटिस्ट लोग हमको ये ज्ञान दे रहे हैं कि जो भी इंडस्ट्री हम बनाएंगे जहां पर रॉ मटेरियल मिलता वहीं पर ही बनाओ, बिकॉज द ट्रांसपोर्टेशन चार्ज विल बी लेस बाय व्हिच एक्सपेंडिचर विल बी डिक्रीज। हमको ज्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा, पूरा डायरेक्ट हम माल वहां पर ही प्रोसेसिंग करेंगे, वहां से डायरेक्ट मार्केट को भेजेंगे। अभी सूरत जिला में शुगर कैन फैक्ट्री है, राजस्थान में लेकर हम शुगर कैन फैक्ट्री करेंगे तो यहां से शुगर कैन को ट्रक में भेजना तो भारी पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज ज्यादा पड़ेगा। इसलिए इंडस्ट्रियल लोकेशन शुड बी नियर बाय द रॉ मटेरियल वेयर इज अवेलेबल। थर्ड पॉइंट, द रिसोर्स कैन which can be used in more than one way should be utilized in different way। देखो अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। देखो गन्ना एक सिंपल एग्जांपल है। गन्ना का चूसते हैं, गन्ना का रस निकल जाता है, उसको हम फेंक देते हैं, लेकिन अभी उससे पेपर बनता है गन्ने से। ग्राउंडनट को हम पीसते हैं, ऑयल निकलता, ग्राउंडनट ऑयल बराबर। जो केक बच जाता उसको गाय को खाने के लिए दाना बन जाता है। गाय खाने के बाद गोबर देता है, गोबर से हमको बायोगैस मिलता है। बायोगैस कलेक्शन करने के बाद गोबर को लेकर हम नेचुरल मैन्योरिंग के लिए जमीन पर फेंकते हैं। कितना हमको फायदा हुआ, राइट। तो उसको बोलते हैं मल्टीपल यूज, रिसाइकलिंग एंड मल्टीपल यूज ऑफ सम सर्टेन काइंड ऑफ आर्टिकल शुड बी डन। ओके, different irrigation system utilized for more than one purpose, producing electricity, flood control, transportation। अभी एक नदी को बांधेंगे हम, डैम बनाएंगे, पानी जमा रखेंगे, उससे हमको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, वहां पर फिशरी मछली का खेती होगा, और पानी जो जाएगा कैनाल में जहां पर पानी कम होता है, ऑल सीजन के लिए हम पानी छोड़ सकते हैं, और दोज फील्ड वेयर विल गिव अस कंटिन्यूअसली क्रॉप। ओके, इन दिस वे हमको रिसाइकलिंग भी करना है, मल्टीपल यूज भी करना कितने रिसोर्सेस को। नेक्स्ट कम, नेचुरल रिसोर्स शुड नॉट बी वेस्टेड, कंट्रोल शुड बी लेड ऑन अनप्लान्ड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉइजनियस केमिकल, इंक्रीजिंग स्लम। अभी सिटीज में ज्यादातर स्लम्स ज्यादा बढ़ता है, ठीक है, और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री, दे आर थ्रोइंग देयर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड गार्बेज, गैरेज वेस्ट, जला हुआ ऑयल फेंक देते हैं, गटर लाइन में डाल देते हैं गैरेज वाले, वो जाता है गटर में पड़ के नदी में, नदी से समुंदर बराबर। कितना हार्मफुल चीज हम लोग गटर में छोड़ देते हैं। हमारा घर के बारे में अगर हम बात करेंगे, लेटिन बाथरूम में से कितना कचरा निकलता, एंटायर सूरत, एंटायर इंडिया को बात करेंगे, ये जो गार्बेज जाता है ये ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली दीज आर मर्जिंग विथ रिवर्स एंड वाटर बॉडीज, क्योंकि हम ये सब जो डोमेस्टिक वेस्टेज, इंडस्ट्रियल गार्बेज बराबर, these are playing main role for creating pollution। ये सब के प्रति भी हमको दृष्टि रखना है, नजर रखना है। ओके, अभी स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, अभी हम लोग डिस्कशन किया है। अभी यहाँ पर एनवायरनमेंट हमको द रियल लाइफस्टाइल दैट वी नीड टू लिव, इट डिपेंड्स अपॉन एनवायरनमेंट, में कई बार बोला आपको। ओके, तो एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम अर्थ कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1972। अर्थ कॉन्फ्रेंस held in 1972, स्टॉकहोम, स्वीडन का कैपिटल बराबर। क्या किया गया, the member nations of the United Nations, those who represent United Nations, all the member nations gathered here। Every year a conference is called in any state capital of the country, बराबर। हर कोई कंट्री का कैपिटल में हर साल अर्थ कॉन्फ्रेंस होता है। All the member nation of the United Nations organization, they are gathering, they are discussing about the condition of the environment, which cities and which countries are playing most probably main role for creating pollution। दुनिया में कौन सी कंट्री में ज्यादा पोल्यूशन
क्रिएट करता, कौन सी सिटी में ज्यादा पोल्यूशन होता उसका आंकड़ा लिया जाता है, उसका काउंटिंग किया जाता है और उस कंट्री को ताकीद किया जाता है या उसको मदद किया जाता है। अगर वो लोग मजबूर है करने के लिए, दे आर नॉट वेल डेवलप्ड, तो उसको फंड दिया जाता है यूएनओ से कि आप ये पावर जो जनरेशन करते हैं उसको बंद करो और ये आपको यूएनओ आपको मदद देता है, आप इसको फॉलो करो, राइट। इन दिस वे इंफॉर्मेशन अबाउट पोल्यूशन कंडीशन, इसमें क्या क्या डिस्कशन, information about pollution condition of different cities of the nation is presented, right? Central and state pollution control board have been established to control pollution. हर कोई कंट्री में स्टेट लेवल में और नेशनल लेवल में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एस्टैब्लिश किया गया। दे विल लुक आफ्टर कि पोल्यूशन कहां पर होता, इंडस्ट्री में होता, गवर्नमेंट करता या प्राइवेट सेक्टर्स करते हैं, दे आर लुकिंग आफ्टर इट। 5 जून डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसको पूरा वर्ल्ड में पालन किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ओके। नेक्स्ट, इन इंडिया गवर्नमेंट पास्ड एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आएगा। 1981 एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 में सरकार ने एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट को बनाया। Next come, international agreement have been signed for deteriorating level of ozone, disposal of nuclear waste and maintenance of biodiversity. जो ओजोन लेयर के बारे में बात किया जाता है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू न्यूक्लियर टेस्टिंग एंड टेस्टिंग ऑफ मिसाइल्स, ओजोन लेयर ब्लैंकेट जैसे पर्यावरण को सन का जो जहरीला किरण आता है, रेडियो एक्टिव अल्ट्रावायोलेट सनरेज दैट इजीली गेटिंग इंटर इनसाइड द एनवायरनमेंट which is very much harmful for human beings, animals and plants. इसलिए अभी ओजोन लेयर जो सब्बा एकदम ऊपर है वो भी क्रैक हो चुका है, रबर बहुत क्रैक हो चुका है, इसलिए लोग सनस्ट्रोक में मरते हैं। इसलिए ओजोन लेयर कैसे कंट्रोल में आएगा? जब हम प्लांटेशन बढ़ाएंगे, पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे, जब हम थर्मल पावर को कम यूज करेंगे, देन ये ऑल दीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर क्रैकिंग द ओजोन लेयर। इसलिए उसके लिए भी हमको सोचना जरूरी है, ओके। इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन फॉर ओजोन लेयर, thus conservation of environment is everyone's responsibility. If we do not control pollution, no doubt life on earth will be doomed soon. ये खाली हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते थे, सरकार सब करेगा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सरकार का जिम्मेदारी है, सरकार करेगा, हम ऐसा सोच के रहते हैं। नहीं, सरकार, मैंने पिछले बार भी बोला था, सरकार कोई एक इंस्टीट्यूट है, कंपोजिशन ऑफ सम रेस्पॉन्सिबल पर्सन, जो सरकार होता है, और हम लोगों को, आम जनता को उसके लिए कॉन्शियस होना है। वी मस्ट बी अवेकन, वी मस्ट बी thoughtful about it, we must have to particular about it to look after the environment. जब environment बिगड़ गया तो हम भी खत्म हो जाएंगे। Until the environment is good, we are good. हम बोलते मेरे को 5 करोड़ 10 करोड़ प्रॉफिट होगा, जो भी होना है, मैं तो ऐसा आराम करके मेरा घर में एसी लगा के रहूंगा, लेकिन कितना दिन, जब पूरा दुनिया बर्बाद हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? हम अकेला जिंदा रहेंगे? नहीं। सो एवरीबडी मस्ट हैव टू लुक आफ्टर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, ओके my dear students. By this this lesson is completed and you will like, share and subscribe. I am requesting you. Good night. Hello.